Hello, Assalamu alaikum. Hope we are live. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम. There's a bit of delay, but I think we should start. थोड़ी सी voice में lagging है, but I think this is a good point to start. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रफ़ी शान है और मैं केपी सर के साथ मुंसलिक हूँ. आई एम बेसिकली हेल्पिंग केपी गवर्नमेंट थ्रू केपीआईटी बोर्ड का एक इनिशिएटिव है जिसमें केपी सर इज रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प एंड प्रमोट साइबर सिक्योरिटी इन द प्रोविंस. And the purpose for today's session was to basically hold a session around the proposed Personal Data Protection Act, and we have prominent panelists with us. We have Asif with us, we have Jannat with us, we'll have Ansari Sahab with us, and most importantly, we have a good audience with us जो कि हमें इस discussion में join करेंगे, so that we can discuss this topic today and come up with some conclusive and solid recommendations for the government of Pakistan to be included in this proposed bill. So मेरा introduction हो गया. अब मैं आसिफ साहब और जन्नत से request करूंगा कि just a brief about themselves and what they do and how they are associated with the subject. जी मैं thank you very much Dr. Rafi. My name is Asif Riaz and I have a company called Digital Arrays Private Limited where we specialize in cybersecurity and some other technology related products and services are there. Apart from Digital Arrays, I also am a member of FPCCI Committee on Cybercrime and Cybersecurity. And I am also incidentally Vice Chairman of PSQCA's National Steering Committee on Information and Communication Technologies. I did already a session on this topic on Personal Data Protection Bill 2020 around before the start of Ramzan. And I mentioned during that session on YouTube that I will do session 2 as well. So I did not wanted to do that session, this session a solo session. So that's why I decided to be part of the team with KP Sir. And thank you very much for giving us this opportunity. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you very much. My name is Jannat Ali Khalil. I'm a lawyer based out of Lahore, and I've done extensive research around data protection. जो 2018 का बिल था उसके ऊपर भी, उसके अलावा भी साइबर क्राइम के साथ मुझे एटलीस्ट 2 साल हो गए हैं जिसमें मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ. उसमें FIA के साथ भी काम किया है, FIA के लिए भी ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं. और मेरा particularly interested in data protection, cyber crime, digital rights, privacy rights in particular, so literally anything to do with privacy. और बस रिसर्च भी की है, एडवोकेसी भी की है और फिलहाल इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर भी काम कर रही हूँ. तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. Do we have Salman Ansari sir with us? Is he online? I think would drop हुए because he was with us. Okay, so let's start with the topics and we'll Salman sab join करते हैं. As soon as he join, तो we'll rotate the mic. So Data Protection Act में कुछ हमने फाइंडिंग्स की हैं और कुछ उसका बैकग्राउंड हमने आइडेंटिफाई किया है कि यार what are the key elements which are considered which need to be looked into. So a bit of overview of
some of the data regimes across the world, जिसमें कुछ जो सबसे इस वक्त prominent law है, that is GDPR, applicable in mostly in the European territory. EU के जितने भी countries हैं, member countries हैं, उसमें ये applicable है. So if we look into this broader view, तो हमें ये समझ आती है कि जो सबसे strictest data regime है वो इस वक्त यूरोप के अंदर है, बिकॉज लॉ इज स्ट्रिक्ट, बिकॉज जो उसका लॉ का ऑब्जेक्टिव है वो कंज्यूमर राइट्स को, डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और उसने काफी हैवी फाइन्स किए और काफी सख्त किस्म के रेगुलेशंस हैं जिसके साथ इंडस्ट्री को कंप्लाई करना है, और उसके कुछ की एलिमेंट्स हैं जिसको हमने समराइज किया है. कुछ जो है डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स हैं और कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. अगर हम डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स को अगर हम देखें, जिसको हमने ब्रीफली अगर सम अप करने की कोशिश की, ऑब्वियसली इसमें से कुछ चीजें पाकिस्तान के लॉ के अंदर रिफ्लेक्ट होंगी, उसकी तरफ हम आएंगे डिटेल में, लेकिन एक ऑडियंस के लिए एक ब्रॉडर ओवरव्यू कि व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड और किन प्रिंसिपल्स पे ये लॉ जो है डिफाइन हो रहा है. तो ऑब्वियसली जो डेफिनेशन है, जो आउटलाइन किया गया डेटा सब्जेक्ट्स को, वो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से किया गया है, जिसमें anyone who is basically custodian, who is basically have the authority to hold some data जो उसका अपनी जात के मुतालिक हो, या कोई एप्लीकेशन से वो जनरेट करे, या वो कंटेंट जनरेट करे किसी शेप या फॉर्म में, और फिर कुछ और डेफिनेशंस जिसके अंदर जो डेटा सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन को मजीद जो ना डिफाइन किया गया इनटू डिफरेंट लेयर्स. नाउ इफ यू लुक इनटू द राइट्स ऑफ द डेटा सब्जेक्ट्स, इसमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है कि उसको पता हो कि उसका डेटा किसके पास है और क्या उसके साथ हो रहा है. राइट टू एक्सेस है, जिसमें डेटा सब्जेक्ट्स लाइक जो सारिफीन हैं, जो कि शायद वो किसी भी टेलीकॉम कंपनी के सारिफीन होंगे, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में अपना डेटा सेंटर कर रहे होंगे, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अपना डेटा सेंटर कर रहे होंगे, एनीवन, या कोई किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना डेटा सेंटर कर रहे होंगे. सो उनके क्या राइट्स हैं, उसमें राइट ऑफ एक्सेस भी है, राइट टू रेक्टिफाई भी है, राइट टू अरेज भी है. उसमें कुछ और की कॉन्सेप्ट है, जिसका कॉन्सेंट है और कॉन्टेक्स्ट है, कि कॉन्सेंट किस तरह से यूजर से कॉन्सेंट लिया जाएगा, और वो उसका कॉन्सेंट और फिर उसके साथ कॉन्टेक्स्ट भी इस्टेब्लिश होगा. एंड जो दूसरी पार्टी है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, वो किन किन प्रिंसिपल्स को बेसिकली कंप्लाई करेगी, जिसमें कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जिस पे बात मेरे ख्याल से आज होगी या होनी चाहिए, वो पाकिस्तान के लॉ के अंदर होनी चाहिए. वो ये कि एक तो ये कि डेटा प्रोटेक्शन बाय डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हों वो बाय डिजाइन जो है वो इन प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करें, वो कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करें इन रिलेशन टू द डेटा सब्जेक्ट्स. और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सीरियसनेस है, जो कि पाकिस्तान के लॉ में भी रिफ्लेक्ट किया गया कि देयर इज अ डेजिग्नेटेड पर्सन जो कि इसको देखेगा. ब्रीच नोटिफिकेशन, यूरोपियन लॉ जो है वो मैंडेटरी करता है कि विद इन सर्टेन आवर्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये पता चलता है कि वो किसी भी सिटीजन का डेटा जो है ब्रीच हुआ है, उसने नोटिफाई करना है अथॉरिटी को भी और डेटा सब्जेक्ट्स को भी. सो ये कुछ ब्रॉडर प्रिंसिपल्स थे जो कि जीडीपीआर के अंदर आइडेंटिफाई हुए थे. और अगर हम इसको कंपैरिजन करें कि व्हाट आर द पार्टीज एंड स्टेक होल्डर्स इन दिस होल डिस्कशन, तो ऑब्वियसली सेंटर में सिटीजन है, वो डेटा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होना है, जिसके डेटा के अराउंड ये लॉ जो है वो बना हुआ है या बनाया जाएगा. एक साइड पे उसकी सुपरवाइजरी अथॉरिटीज हैं, जो कि हर लॉ के अंदर कोई ना कोई उसकी एक लुक आफ्टर के लिए अथॉरिटी होती है, जिसकी ओनरशिप वो लेती है और वो उसको फिर आगे लेके भी चलती है. हमारे लॉ में भी इसी तरह से एक अथॉरिटी डिफाइन है. इसी तरह से हमारे पास कुछ फर्म्स हैं जो कि पब्लिक सेक्टर्स भी हो सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज भी हो सकती हैं हु आर नॉट रिजाइडिंग इन पाकिस्तान. सो फर्म्स के अंदर दो कैटेगरीज हैं, प्रोसेस
प्रोसेसर्स की हैं और कंट्रोलर्स की हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है ये मेजर डेटा प्रोटेक्शन लॉज के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के डेटा प्रोटेक्शन लॉ में भी मौजूद है, यूरोपियन लॉ में भी मौजूद है, लेकिन इनकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत वेरी कर रही है कंट्रोलर्स की और प्रोसेसर्स की। तो उसको भी हमें शायद बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि वो जो डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसी तरह से सिविल सोसाइटी है, एडवोकेट्स हैं, लॉ मेकर्स हैं जो कि फीड इन करते हैं अथॉरिटी को टू बेसिकली लुक इनटू द लॉ विच जो कि सिटीजन्स के राइट्स को भी देखे और वो एप्लीकेबल भी हो। और फिर हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी पार्टनर्स होते हैं जो कि थर्ड पार्टी होते हैं जो कि शायद कंट्रोलर की डेफिनेशन में ब्रॉडली आते हैं, बट देयर आर अदर एंटिटीज व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन इट। सो दिस इज अ ब्रॉडर ओवरव्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स, जो कि एक हमें ऑब्वियसली मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मीडियम का एक रिसर्च पेपर था जिसके अंदर एंटिटीज को डिफाइन किया गया था। नाउ सम ऑफ द की कॉन्सेप्ट जो कि पाकिस्तान के लॉ के अंदर है, जो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान का लॉ जो है वो जीडीपीआर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उन्हीं प्रिंसिपल्स को आगे लेके चल रहा है। गुड इनिशिएटिव, और ये बड़े अच्छे टाइम पे हुआ बिकॉज इस वक्त जो डेटा रिजीम्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड वो बहुत ही ज्यादा फैल चुकी हैं और कंट्रीज आर सेंसिटाइज अबाउट इट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक की कॉन्सेप्ट इसके साथ एसोसिएटेड है वो है डेटा कॉलोनाइजेशन का, जिसमें द बिग जॉइंट कंपनीज जिनके पास ज्यादा डेटा जाता है कंज्यूमर का, चाहे वो कोई भी किसी किस्म का भी डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म हो, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें उन्होंने सोसाइटी के नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की है या इन्फ्लुएंस हुआ है या उनके डेटा ब्रीच किया, उनकी निग्लिजेंस की वजह से सोसाइटी में जो नैरेटिव है उसको कंट्रोल किया गया है। देयर आर लॉट ऑफ लाइक वी हैव कैम्ब्रिज एनालिटिका एग्जांपल, वी हैव couple of studies and published studies and papers in Justin Trudeau's recent campaign and election, जिसमें जो है recommendation systems की biasness को promote की गई कि अगर मैं एक पॉलिटिकल व्यू के प्रो किसी कंटेंट को लाइक करता हूं तो रिकमेंडेशन सिस्टम्स आर डिजाइन टू बेसिकली सर्व मी कंटेंट जो कि मेरी प्रेफरेंसेस से, सो दे इन दिस होल एआई थिंग जो एक न्यूट्रलिटी ऑफ कंटेंट है वो समहाउ compromise हो जाती है। So in this whole context, so data protection की जो regimes हैं वो they're pretty important कि वो एक balanced opinion जो है society में prevail करवाएं और obviously जो data subject के rights हैं उनको promote करें। So this is a very good step कि हम एक right direction में जा रहे हैं। Law का draft अभी release हुआ है, but there are some gaps which we need to look into। जो की कॉन्सेप्ट्स हमने पहले कहा कि वो रिकग्नाइज करें। अब खुद थोड़ी सी दो चार चीजें जो मोटी मोटी हैं, आई ट्राई टू कवर अप इन लाइक 5-7 मिनट्स एंड देन आई रिक्वेस्ट माय को पैनलिस्ट टू कमेंट ऑन दैट। जो पहली चीज थी वो स्कोप ऑफ जो पाकिस्तान का बिल है उसका है कि उसका टेरिटोरियल स्कोप जो हमने डिफाइन किया है। तो हमारा जो एक्ट है वो उसको कह रहा है, अच्छा जो मैंने यहाँ कलर कोडिंग शो की है, द ग्रीन वन बेसिकली रिफ्लेक्ट्स आइदर द एग्जैक्ट वर्डिंग आर बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट पाकिस्तानी लॉ सजेस्ट, और रेड में वो है जो किसके साथ कमेंट्री है। सो या द कैप्स हैं। सो पाकिस्तान का जो लॉ है, हेलो आर वी स्टिल लाइव? ऑलराइट। सो या जो पाकिस्तान का लॉ है वो रिकग्नाइज करता है कि कंट्रोलर और प्रोसेसर आइदर local or foreign is located in Pakistan. So what about those which are not located in Pakistan? And उसके जो second section है वो थोड़ा सा उस पे comment कर रहा है कि what will be those who are not located. तो वो कहता है कि जी not registered in Pakistan are established in Pakistan and shall nominate a representative for the purpose of this act. तो फिर उसके अंदर फिर एक सब सेक्शन 3.3 है जो उसकी फर्दर डेफिनेशन पे चला जाता है। बट थोड़ा सा गैप यहाँ पे जो मुझे आइडेंटिफाई हुआ वो ये था कि व्हाट अबाउट द फॉरेन, अगर एक कंपनी है वो फॉर एग्जाम्पल चिली या मैक्सिको या किसी और मुल्क में बैठी हुई है, वो ना तो अपना रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में नॉमिनेट करती है ना कोई ऑफिस खोलती है, स्टिल वो समहाउ पाकिस्तानी सिटीजन का डेटा या डेटा सब्जेक्ट्स का डेटा हार्वेस्ट कर रही है या लीगली ले रही है,
तो क्या उसके ऊपर ये लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, और वो किस तरह से एप्लीकेबल होगा। तो इस डेफिनेशन को जो है ना, इस कंट्रोवर्सी को जीडीपीआर ने बड़े अच्छे तरीके से सेटल कर दिया। उसने कहा है कि जी दिस लॉ इज एप्लीकेबल अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर एवर द यूरोपियन सिटीजन डेटा इज बीन प्रोसेस्ड। और उसके ऑब्वियसली फिर कुछ ना कुछ उसकी उन्होंने फर्दर डेफिनेशंस किए कि जी कंट्रोलर रजिस्टर्ड होगा या प्रोसेसर रजिस्टर्ड होगा इन द ईयू कंट्रीज। सो दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। लेकिन द वे वी आर ट्राइंग टू डिफाइन इज, इसमें गैप ये रह जाता है कि अगर एक एंटिटी ऐसी है जो कि पाकिस्तान में आती ही नहीं है और वो अपना नॉमिनेट ही नहीं करती अपना ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर उसके ऊपर उसको क्या किस तरह से डील करेगा लॉ। सो दिस बिग गैप, और ये एक इशू है। इसी तरह से जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ है, इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा गया कि हैज, और ये जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट मैंने कॉपी की है इस वजह से कि उसको हम उसी कॉन्टेक्स्ट में ले जिस लॉ को डिफाइन कर रहा है। हैज कंट्रोल over or authorizes the processing of personal data, provide any of the data subjects. That's fine. Either local or foreign is located in Pakistan. Again, located in Pakistan. So what about those who are not located in Pakistan, or who do not have representation in Pakistan, or who refuse to have a representation in Pakistan, or the ones who are basically harvesting the citizens' data but not declaring that they are doing it. And that is, I think, the major issue for me. कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स या एप्लीकेशंस हैं जो कि सिटीजन्स डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, but they are not declaring that they are doing it. So how to deal? So this act should basically address them as well. फिर सेंसिटिव एंड अदर क्लासिफिकेशन, इसमें हमने कहा कि यार पर्सनल डेटा तो है, तो क्या ये जो एक्ट है ये पर्सनल डेटा पे नहीं लगेगा, ये जो डेटा क्लासिफिकेशन की बाकी रिजीम्स हैं उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, या होगा, ये किस तरह से होगा। तो ये एक ओपन क्वेश्चन है कि बिकॉज लॉ ही कह रहा है कि सिर्फ पर्सनल डेटा पे एप्लीकेबल होगा। सो वी हैव टू लुक इनटू दिस एज वेल। अच्छा, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि शायद लॉ में डिफाइन किए हैं लेकिन इतने एक्सप्लिसिटली नहीं किए, जिसमें फॉर एग्जांपल द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेटा इज समहाउ मिसिंग इन द लॉ, के व्हाट डज हाउ डू वी डिफाइन डेटा इटसेल्फ, बिकॉज पर्सनल डेटा की डेफिनेशन मौजूद है, सेंसिटिव डेटा की है, और कुछ बेसिकली की कॉन्सेप्ट जो कि सेंसिटिव डेटा में से मिसिंग है, फॉर एग्जांपल द माइनॉरिटीज एंड पॉलिटिकल व्यूज एंड अदर थिंग्स, जो पर्सनल ओपिनियंस हैं, क्या वो सेंसिटिव डेटा में शामिल हैं कि नहीं है। अच्छा, फिर कुछ लॉज ने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ प्रोफाइलिंग को, और कि इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग क्या है और कंपनीज उसको किस तरह से ट्रीट करेंगी और डील करेंगी। जिस तरह से कुछ रीजनल लॉज हैं उन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है, समहाउ किसी हद तक जीडीपीआर में ही डिफाइंड है, लेकिन पाकिस्तान लॉ में ये मिसिंग है, या जो भी हमारा प्रपोज्ड बिल है उसमें मिसिंग है। अच्छा, जो डेटा हमारा जनरेट होगा थ्रू ऑटोनमस मींस, उसको कैसे डील करना है, इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। मेडिकल डेटा को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया, बायोमेट्रिक एंड जेनेटिक डेटा को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया डेफिनेशंस में। तो जब डेफिनेशंस में कोई टर्म या कोई कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि लॉ उस या जो भी प्रपोज बिल है उसको क्लियरली एक्सप्लिसिटली उन डेफिनेशंस के साथ शायद परसू नहीं कर रहा है या नहीं करना चाह रहा। फाइनेंशियल डेटा की कोई क्लियर डेफिनेशन शायद हमें नहीं मिल पाई, और कुछ लॉज में हमें ये, जब हमने कंपैरिजन किया डिफरेंट लॉज के साथ, तो हमें ये नजर आया कि उन्होंने कोई डेटा सब्जेक्ट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट करने के लिए कोई यूनिक आइडेंटिफायर की बात की है। तो क्या हम CNIC को कर सकते हैं थ्रू दिस एक्ट, और उसके अराउंड हम एक कोई रिजीम डिफाइन कर लें। अच्छा, कुछ जो ब्रॉडर जो गैप्स हमें नजर आए उसमें कुछ पावर और फंक्शंस की बात है, बिकॉज इट लुक्स लाइक अथॉरिटी हैव लाइक टू मच पावर in a way that it basically fails to define some of the key elements जो कि होने चाहिए for to address the concerns of the all stakeholders. Breach notification जो है उस पे कोई हमें clear cut डेफिनेशन जो है कुछ जगह पे ऑब्वियसली है, लेकिन देयर एग्जाम्पशंस जहां पे वो ब्रीच नोटिफिकेशन को बायपास कर सकता है, सो दैट नीड टू बी एड्रेस समहाउ एज वेल। सिविल और क्रिमिनल का एक बड़ा डिफरेंस है जो कि शायद शुरू से चलता आ रहा है, पिछले 2 ड्राफ्ट्स में भी हमने देखा जो हम आए थे इसी बिल पे, कि वी आर नॉट आइदर शो कि इसको हमने क्रिमिनल ट्रीट करना है कि सिविल ट्रीट करना है। तो ये हमें बड़ा क्लियर कट बताना पड़ेगा। बहुत सारी मतलब ये इस्लाम में अच्छी ड्राफ्ट में ये अच्छी बात है कि
एक्सप्लिसिटली काफी सारी चीजों इसने सिविल साइड पे ले आया है, लेकिन स्टिल देयर इज अ गैप जहां पे वॉइड है कि वो शायद क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट हो जाएगा या किया जा सकेगा फ्यूचर में। उन केसेस में फिर एक बड़ा इशू ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर क्या आप उसके डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को जेल लेके जाएंगे या उसका सीईओ जेल जाएगा या किसी बैंक। सो दीज आर द सिनेरियोज व्हिच आई थिंक व्हिच नीड टू बी लुक्ड इनटू, कि अगर हम इसको क्रिमिनल समझना चाह रहे हैं और अगर ऑब्वियसली इसमें कोई अगर ऐसा मैल इंटेंशन किसी इंडिविजुअल की नजर आती है तो ऑब्वियसली वी हैव अनदर लॉ व्हिच इज साइबर क्राइम एक्ट पीका का 2016 का, उसमें ऑब्वियसली दैट इज क्रिमिनल इन नेचर। तो सब्सिक्वेंटली या तो इसकी फाइंडिंग्स पे, केस की फाइंडिंग्स पे, या फिर सेपरेटली उस लॉ के अंडर भी वो जा सकेगा। बट we have to define clearly how this law treats, this draft want to treat this data protection regime. So power to make rules, so I mean ये पहले मैंने कहा कि जो power और functions of authority है वो बहुत ही कोई broader context में उनको address किया गया है, और उसको somehow हमें देखने की review करने की जरूरत है कि उसका एक working mechanism ऐसा हो जिसमें we can basically have a balanced approach. फिर जो एक सबसे interesting concept मुझे नजर आया इसमें कि the authority will have power to devise license framework for the controller processors. So इससे तो ये मुझे लग रहा है कि एक authority जो है वो laws जो licensing framework को devise करेगी, और कि जो भी कंट्रोलर और प्रोसेसर्स है उनको लाइसेंस देना है कि नहीं देना और किन शराइत के तहत देना है, कुछ बेसिकली प्रोविजंस तो कंट्रोलर और प्रोसेसर की डेफिनेशंस के अंदर मौजूद है, लेकिन स्टिल जो है वो इस अथॉरिटी का मैंडेट होगा कि वो किसी को डेटा प्रोसेसर या कंट्रोलर का लाइसेंस दे। नाउ दिस इज अगेन कंसर्न है अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिकॉज इंडस्ट्री माइट नॉट बी हैप्पी कि एक छोटा स्टार्टअप है, वो कंपनी खुलने जा रही है, उसको 10 अगर रजिस्ट्रेशन भी करवानी है तो वो फिर जाके लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करेगा। तो व्हाई नॉट टू हैव अ रजिस्ट्रेशन ओनली, के वो सिर्फ नोटिफाई कर दे कि दिस इज आई मीन दिस इज माय नेचर ऑफ बिजनेस एंड आई वांट टू डील विद दिस डेटा, और मैं ये इन एट्रीब्यूट्स को डील करूंगा, प्रोसेस करूंगा, ये कंट्रोल करूंगा, एंड दैट्स इट। वो उसकी तरफ से एक सेल्फ डिक्लेरेशन हो सकेगी कि वो खुद कंपनी जो है अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दे कि मैं प्रोसेसर हूँ या कंट्रोलर हूं और मैं इन एट्रीब्यूट्स को डील करना चाहूंगा विद दिस कॉन्सेंट, और ऑब्वियसली वो कॉन्सेंट और कॉन्टेक्स्ट को और जो भी सब्जेक्ट राइट्स हैं, डेटा सब्जेक्ट राइट्स डिफाइन किए गए लॉ को, उनको कंप्लाई करेगा। बट लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क हैज अ पोटेंशियल टू बेसिकली स्लो डाउन द इनोवेशन प्रोसेस इन द इंडस्ट्री एंड might not have that constructive contribution. Exemption and power to make further exemption. Now this is exemptions GDPR के अंदर भी है, and जैसे हमने देखा कि GDPR में काफी सारा इशू था जब वो शुरू में आया, तो फिर they had to launch like series of exemptions because वो शायद शुरू में डेटा जो मेडिकल डेटा था उसको भी उन्होंने फिर R&D के बहुत सारे डेटा को उन्होंने exemption नहीं रखा हुआ था, फिर they had to do that. So that was an issue, initial hiccup in 2016-17 when GDPR was जब उसको फंक्शन करने लगे। तो यहाँ पे भी है, बड़ी अच्छी बात है एग्जाम्पशंस हो, लेकिन उसकी कोई क्लियर बाउंड्रीज, उसके प्रिंसिपल्स डिफाइंड हो, बिकॉज अभी जो हमने बेसिक प्रिंसिपल्स को लॉ में अंदर देखा दे रहा ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स जिसकी इंटरप्रिटेशन जो है कल काफी मुश्किल हो जाएगी फॉर कंपनीज टू बेसिकली फिट देम इनटू आर डिसाइड। तो इसका इम्पैक्ट हमने ये देखा कि जब इस तरह की चीज होती है तो फिर उससे क्या होता है कि वो फिर नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज द दो एंटिटीज आ जाती हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट में, सो दे टेंड टू डिफाइन देयर ओन काइंड ऑफ डेफिनेशंस अराउंड इट। Right. So we have looked into the different exemptions, और फिर सबसे important जो है power to make exemptions. This is very, very interesting, in fact. So I think we are taking too much time, so I'll just skim through it. We have then there's a technical capacity of the investigation and the trial. This is a pure technical organization or authority, और उसकी जो हमने जो structure देखा उसमें there is hardly any technical representation. Our definition of any technical
बॉडी विद इन दिस अथॉरिटी जो कि इसको इन्वेस्टिगेट कर सके, जिसको सर्च कर सके, ट्रायल कर सके, और फिर बहुत सारी फोरेंसिक्स की स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट है जो कि शायद ये पूरी ना कर सके. So I think these are the issues we need to look into, and I think I'll pass on to Asif Saab to take it further. जी, thank you very much, Dr. Rafi. I'm just going to share the screen. Has my screen been shared already? Screen नजर आ गई है मेरी? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आई कैन लिसन. आसिफ साहब, आप प्लीज कीजिए. मेरा ख्याल से मेरी स्क्रीन को मैं हटा देता हूं अगर इफ इट्स नॉट बीन शेयर्ड. जी, मेरी स्क्रीन अब आ गई है. थैंक यू. बिल्कुल जी. Okay, so actually this is the presentation which I did few days back. और उसमें क्योंकि मैं एक ही सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए आई left the session in between, and then I mentioned that I will come back with the session 2. So this is actually a session 2, but obviously those who did not attend or who could not see the video, which is already available on the Digital Arrays YouTube channel. So I will just run down as quickly as possible to what I have already mentioned, and then some of the remaining areas that I was supposed to touch upon. So first of all, I just wanted to make a note of the fact that this draft is not the first time that it has been uploaded on the ministry's website. आज से 2 साल पहले जुलाई 2018 में भी इसका एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन जो है वो शेयर हुआ था. तो ये एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है जो कि ऑन गोइंग है, और इसमें अच्छी बात है अभी तक इसको प्रोमोगेट नहीं हुआ है, क्योंकि जो इसमें वीकनेसेस हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको पहले रिमूव कर लिया जाए और उसके बाद इसको प्रोमोगेट किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चाहे उसमें 1 साल और ही क्यों ना लग जाए. अच्छा, उसके अलावा फिर इसमें ये कि ये बनाने की वजह क्यों पेश आई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को. इसकी वजह एक जो है, जो इसमें खुद भी लिखा हुआ है, वो ये है कि इसमें आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का. Article 14 is basically supposed to guarantee the privacy of home and dignity of every man and woman, and this is supposed to be the fundamental right of every human being in Pakistan. So it is to ensure this Article 14, and ensuring this Article 14 is done. One of the tools to ensure this article is this Personal Data Protection Bill 2020. And another reason is to ensure the confidentiality, integrity, and privacy of personal data, which is processed or is stored in different databases, private or public sector organizations. Confidentiality और privacy दो अलग अलग चीज़ें हैं. Confidential का मतलब ये हो गया कि डेटा आपका उसको ही सिर्फ नज़र आएगा कि जिसको नज़र आना चाहिए, और privacy का मतलब ये हुआ कि जी आपका डेटा जो है वो उस जगह पे स्टोर ही क्यों हो रहा है, उस जगह पे प्रोसेस ही क्यों हो रहा है. So these are two different concepts, confidentiality and privacy. और इस डेटा में क्या क्या शामिल हो सकता है. डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी बैंकिंग डेटा होगा, आपके CNIC की डिटेल्स हो गई, आपका बायोमेट्रिक डेटा हो गया, आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, आपकी परचेजिंग हिस्ट्री होगी, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री होगी, आपकी इंटरनेट की ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी, आपकी टेलीफोन
का कार्ड की कॉल हिस्ट्री हो गई, आपके एड्रेसेस हो गए. So these are the different types of data which might come into the definition of personal data. अच्छा, इस लॉ में ये भी डिफाइन कर दिया गया है कि डेटा कलेक्टर्स कौन होंगे और डेटा प्रोसेसर्स कौन होंगे. डेटा कलेक्टर्स आर दोज एंटिटीज के जो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और डेटा प्रोसेसर्स बाज दफ़ा वो डेटा कलेक्टर खुद होंगे, और बाज दफ़ा उन डेटा कलेक्टर्स ने डेटा प्रोसेसिंग के लिए किसी थर्ड पार्टी एंटिटी को एंगेज कर लिया होगा कि जी हमने ये डेटा कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब हमने प्रोसेसिंग के लिए किसी और को आउटसोर्स कर लिया. तो वो बास केसेस में डेटा प्रोसेसर जो है वो डेटा कलेक्टर खुद होगा, और बास केसेस में वो डेटा प्रोसेसर कोई और होगा. तो इस लॉ में इन दोनों की जिम्मेदारियां बता दी गई हैं कि डेटा कलेक्टर्स की क्या जिम्मेदारी होगी और डेटा प्रोसेसर की क्या जिम्मेदारी होगी. और फिर अगर उसको जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता तो उस पर उसको सजा क्या दी जाएगी. ये है इसमें. और फिर थोड़ा सा इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम आज इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें. इसमें एक प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहरहाल बहुत बड़े प्रॉब्लम है, उन बड़ों प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये है कि डेटा सब्जेक्ट्स के पास राइट नहीं है. दे डू नॉट हैव द राइट टू नो दैट द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और द प्राइवेसी ऑफ देयर डेटा हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. मेरा डेटा है वो नादरा के पास पड़ा हुआ है, वो पुलिस के पास पड़ा हुआ है, वो एफबीआर के पास पड़ा हुआ है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास पड़ा हुआ है, या टेलकोस कंपनीज के पास पड़ा हुआ है, या बैंकिंग कंपनीज के पास पड़ा हुआ है. उन तमाम डेटा कलेक्टर्स और डेटा प्रोसेसर्स को पाबंद नहीं किया गया है कि अगर वो मेरा डेटा चोरी करवा बैठते हैं, मेरा डेटे की प्राइवेसी को वो इंश्योर नहीं कर पाते और वो ब्रीच हो जाती है प्राइवेसी ऑफ डेटा, तो मुझे बताना जरूरी नहीं है. पाबंदी नहीं है कि मुझे कोई आके बताए. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो ही मेरा डेटा कोई और चोरी करवा बैठता है तो वो मुझे फौरन इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि वो मेरा डेटा था. तो ये एक राइट होना चाहिए, और डेटा सब्जेक्ट्स के पास ये राइट होना चाहिए कि उनको फिल फॉर बताया जाए कि आपका डेटा चोरी हो चुका. मूविंग फॉरवर्ड वेरी क्विकली, इसमें गैप्स एंड टाइमलाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम इसमें ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी जो है वो बाद में इंस्टीट्यूशनलाइज होगी. जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली एस्टेब्लिश होगी, वो बाद में बनेगी. पहले ये लॉ प्रोमulgate हो जाएगा. 6 महीने के अंदर अंदर उस अथॉरिटी को बनाना है, कानून ये कह रहा है. लेकिन मेरी सजेशन ये है कि उस अथॉरिटी को पहले बना लिया जाए और फिर इस लॉ को प्रोमulgate किया जाए, क्योंकि वो अथॉरिटी ही नहीं होगी जिसने उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी. 6 महीने का टाइम नहीं रखा जाए, पहले अथॉरिटी बनाई जाए, फिर उसको इस कानून को प्रोमulgate किया जाए. दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि अथॉरिटी शैल प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स टू प्रोटेक्ट डेटा. सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है कि वो अथॉरिटी जब बन जाएगी उसके बाद वो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करेगी डेटा प्रोटेक्शन के. तो मेरा ये कहना ये है कि ये अभी किया जाए, क्योंकि आपके पास वो स्टैंडर्ड्स ही नहीं है कि जिनके अकॉर्डिंगली आपने डेटा प्रोटेक्ट करना है. तो फिर आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि आया वो डेटा प्रोटेक्टेड है या नहीं है. तो इसलिए पहले अथॉरिटी बनाई जाए, वो अथॉरिटी वो पहले स्टैंडर्ड्स डिफाइन करे, और फिर उस स्टैंडर्ड को आप फॉलो करने का टाइम दें, और फिर आप बोलें कि अब ये लॉ जो है वो नाफिजुल अमल हो गया है. अच्छा, अब इसमें सेक्शन 50 है जिसका टाइटल है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज. उसमें ये कहते हैं कि जी आपका इस कानून में जो भी सेक्शंस हैं वो उनमें उनकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो वो डिफिकल्टी बाद में हम रिमूव करेंगे. किसके बाद? इस लॉ को कमेंस कर देने के बाद, प्रोमलगेट कर देने के बाद उन डिफिकल्टीज को रिमूव किया जाएगा. तो ये पहले रिमूव करना चाहिए. हमारा कहना ये, अच्छा ये डिफिकल्टीज हो क्या सकती हैं? फॉर एग्जांपल ये लॉ एक चीज कहता है और जो इस कानून से पहले जो लॉ बना दिए गए वो दूसरी चीज कहते हैं. तो इस कानून में ये लिखा हुआ है कि इस कानून के जो प्रोविजंस हैं वो सुपरसीड करेंगे इसके पहले से मौजूदा कवानीन को. तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें होंगी उसमें. तो उन डिफिकल्टीज को या उन कॉन्फ्लिक्ट्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उनको रिमूव अभी कर लिया जाए. ये रिमूवल
डेफर ना की जाए. रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज शुड नॉट बी डेफर्ड एंड शुड बी डन बिफोर हैंड. सो अगर ये नहीं करते आप, तो फिर ये ऑब्वियसली एक कानूनी इसमें डिफिकल्टी होगी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स होंगे और उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकेगा कि वो बोलेंगे मैं इस कानून को फॉलो करूं या वो पहले से मौजूदा कानून को फॉलो करूं. अच्छा, सेक्शन 49 में भी इसी तरह की चीजें हैं कि आपका अगर ये लॉ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है किसी प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ, तो इस कानून को सुपरसीड करेंगे. लेकिन आपने उस कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को आइडेंटिफाई नहीं किया. ये एक्सरसाइज आप अभी कर लें कि वो कॉन्फ्लिक्ट और वो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं क्या. आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम बाद में इनको आइडेंटिफाई करेंगे उन कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस को, तो दिस इज रॉन्ग. दोज कॉन्ट्रडिक्शंस एंड contradictory provisions should be identified now, not afterwards. Otherwise, these legal gaps will be exploited. अच्छा, मूविंग ऑन. सेक्शन 48 कहता है कि इसमें रूल्स बनाने की किसी को जिम्मेदारी दे दी गई है. अब अगेन उसमें ये कहता है कि जो अथॉरिटी बनेगी वो सुटेबल कोड्स ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स जो है वो प्रिपेयर करेगी. लेकिन वो अभी क्यों ना कर लिए जाए, बाद में क्यों करने को कहा जा रहा है. दिस शुड बी डन नाउ, नॉट आफ्टरवर्ड्स. अच्छा, इसी तरह सेक्शन 47 में टेम्पररी प्रोविजंस का बताया गया है कि डेटा कलेक्टर्स कौन है, डेटा प्रोसेसर्स कौन है. और फिर ये कहा गया है कि इस कानून को, ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2020 है, इसको आपने 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लाई करना है. लेकिन ये जो 6 महीने का कंप्लायंस है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. अच्छा, सेक्शन 47 में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लाई करना है, लेकिन सेक्शन 1.3 में लिखा हुआ है कि आप 2 साल में कंप्लाई कर लें. सो व्हाई इज दिस कॉन्ट्रडिक्शन? 6 महीने में करना है या 2 साल में करना है? तो ये इसको क्लैरिटी, इसकी कॉन्ट्रडिक्शन को खत्म किया जाए. और मेरा कहना ये है कि ये these 6 months आर वेरी शॉर्ट, टू शॉर्ट टू बी कंप्लाइड विद. कम से कम 1 साल का टाइम पीरियड देना चाहिए क्रिटिकल डेटा कलेक्टर्स और प्रोसेसर्स को. क्रिटिकल डेटा कलेक्टर्स की और प्रोसेसर्स की एक मैंने कोई एग्जांपल दे दी है कि कम से कम 1 साल का उनको टाइम दिया जाए. और 1 साल का टाइम भी उनको उस वक्त दिया जाए जब आप स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर चुके हों, जब आप कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट्स डिफाइन कर चुके हों, जब आप अथॉरिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर चुके हों, स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशनल कर चुके हों, उसके बाद 1 साल का टाइम दिया जाए. और जो बाकी प्राइवेट एंटिटीज हैं उनको आप 1.5 साल का, कम से कम 1.5 साल दें इसको कंप्लाई करने के लिए. लेकिन उसके साथ साथ ये 1 साल या 1.5 साल का टाइम दे देने के बाद इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आप इसको फॉलो अप करेंगे. तो मेरी सजेशन ये है कि हर एंटिटी अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान और कंप्लायंस का प्लान अथॉरिटी को एक महीने, विद इन 30 डेज अपना प्लान, प्रोजेक्ट प्लान सबमिट कर दे. और उस प्रोजेक्ट प्लान की जो कंप्लायंस है और जो उसकी मंथली प्रोग्रेस है और जो डेविएशंस है वो मंथली बेसिस पे सबमिट कीजिए अथॉरिटी को. वरना तो वो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद पता लगेगा कि कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ. तो एक महीने के बाद उसकी कंप्लायंस की इम्प्लीमेंटेशन और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस जो है वो सबमिट होनी चाहिए टू द अथॉरिटी. अच्छा, अब इसमें पर्सनल डेटा को डिफाइन कर देता है सेक्शन 2. सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, ऑब्वियसली जैसे किसी भी लॉ में होती हैं, तो इस लॉ में भी डेफिनेशंस हैं. लेकिन इसमें सेक्शन 2 भी जो है वो एक्सक्लूड कर रहा है पर्सनल डेटा की डेफिनेशन में से 3 डेटा को. यानी कि ये जो बिल है दिस इज एप्लीकेबल टू पर्सनल डेटा, लेकिन अगर उस पर्सनल डेटा के साथ ये 3 काम कर लिए जाएं तो फिर ये बिल एप्लीकेबल नहीं रहेगा. वो 3 काम कौन से हैं? एनोनिमाइज कर दिया जाए अगर उस पर्सनल डेटा को, उस पर्सनल डेटा को अगर एनक्रिप्ट कर लिया जाए, या उस पर्सनल डेटा को सीडोनिमाइज कर लिया जाए. इन तीनों की डेफिनेशन उसमें लिखी हुई है. अगर ये तीनों काम में से कोई एक काम हो जाता है पर्सनल डेटा का, तो फिर ये पूरा का पूरा कानून नाफिजुल अमल ही नहीं रहेगा उस जगह पर. तो मेरा सबसे ज्यादा कंसर्न इंक्रिप्शन है कि इंक्रिप्शन कर देने के बाद भी ये डेटा जो है नाफिजुल अमल होना चाहिए. इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेबल इवन इफ द डेटा हैज बीन एनक्रिप्टेड. व्हाई? क्योंकि अगर डेटा, एनक्रिप्टेड डेटा चोरी हो जाता है और 2-2.5 साल बाद, 3 साल बाद उसको कोई डिक्रिप्ट कर लेने में कामयाब हो जाता है, तो तब भी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना ही डिवास्टेटिंग हो सकता है कि जितना कि अगर वो
प्लेन टेक्स्ट डेटा कॉम्प्रोमाइज होता। तो इनक्रिप्टेड डेटा को भी अगर आप पर्सनल डेटा की सारे कानून उस पर नाफिजुल अमल कर दें तो ये अच्छा है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड डेटा को अगर कोई चोरी करके ले जाता है तो वो कल को डिक्रिप्ट तो कर ही लेगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो आपको उसको भी उसी तरह की सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करने हैं जैसा कि चाहे वो नॉन इनक्रिप्टेड ही क्यों ना हो। अच्छा, लेकिन हाउएवर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि इंक्रिप्शन को मैंडेटरी किया जाए। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन इज अ मस्ट, एंड इवन आफ्टर इंक्रिप्शन डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के जो सेक्शन है वो इम्प्लीमेंटेबल रहे, चाहे वो स्टोर हो डेटा या वो नेटवर्क पे ट्रांजिट हो या वो आपका किसी और तरह फिजिकली उस डेटा की ट्रांजिट होता हो। I know I might be able, I will take some more time, क्योंकि वो आज़म मुगल साहब जो हैं वो अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से नहीं आ सकें। सो आई विल और वो FPCCI की साइबर क्राइम कमेटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं लाइक माई सेल्फ, तो मैं उनका थोड़ा सा टाइम ले लूँगा। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आई होप कि इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो यूजलेस हो। और सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी मोर टाइम, for giving me the liberty to take the time. अच्छा, इसमें मूविंग फॉरवर्ड इसमें फिर ये कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ डेटा, उसमें क्या चीज़ें मैं देख लेता हूँ कि उसमें। अच्छा, अब इसमें ये कहा गया सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में कि डेटा प्रोसेस करने की मर्जी ली जाएगी डेटा सब्जेक्ट से। कंसेंट मस्ट बी टेकन फ्रॉम द डेटा सब्जेक्ट एक्सेप्ट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। 5(2) सबसेक्शन A B C D E F G, कुछ इसमें सबसेक्शंस है, लेकिन मेरा उसमें जो एतराज है वो सबसेक्शन D और F में है। D और F ये कहता है कि अगर मैं डेटा सब्जेक्ट अपनी मर्जी नहीं भी देता कि आप डेटा प्रोसेस करें या मेरा डेटा कलेक्ट करें, तो तब भी आप उसको प्रोसेस और कलेक्ट कर सकते हैं। और वो क्या सब एक्सेप्शंस हैं, वो ये है कि अगर मेरे ही वाइटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हो तो मेरी मर्जी के बगैर भी आप डेटा कलेक्ट करें और प्रोसेस करें, ये गलत है। मेरा इंटरेस्ट मैं खुद समझ सकता हूँ। अगर मैंने कह दिया कि जी मेरा डाटा ना कलेक्ट किया जाए ना प्रोसेस किया जाए, तो फिर उसको सुपरसीड ना किया जाए। मेरी इंटरेस्ट है, मैं खुद उसको लुक आफ्टर करूंगा। मैंने अगर कह दिया कि इट इज नॉट टू बी प्रोसेस, इट इज नॉट टू बी कलेक्टेड, सो इट इज नॉट टू बी ओवररिडन। अच्छा, सेकेंडली इसमें सेक्शन F कहता है कि अगर वो डेटा कलेक्टर या डेटा प्रोसेसर जो है उसका कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, तो फिर वो डेटा सब्जेक्ट की कंसेंट लिए बगैर भी इसको प्रोसेस या कलेक्ट कर सकता है। तो अब वो लेजिटिमेट इंटरेस्ट कौन डिफाइन करेगा? तो दिस शुड बी, अगर कोई एक्सेप्शन रखनी है तो उनको आप स्पेसिफाई करें, इतनी जेनेरिक ना रखें। क्या अब ब्रीच नोटिफिकेशन है कि डेटा प्रोसेसर या डेटा कलेक्टर के पास से डेटा जो है वो चोरी हो जाता है, तो फिर क्या होगा? वो नोटिफाई करना होगा। किसको नोटिफाई करना होगा? वो जो अथॉरिटी बनेगी इस कानून के अंडर। अब ये सेक्शन 1 सेक्शन 13 का क्या कहता है? इन द इवेंट ऑफ अ पर्सनल डेटा ब्रीच, डेटा कंट्रोलर shall without undue delay and whereas reasonably possible and not beyond 72 hours of becoming aware of the personal data breach, notify the authority in respect of the personal data breach, except where the personal data breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of data subject. अब ये इसमें बड़ी गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ ये, सबसे पहले ये जो अनड्यू मैंने बोल्ड किया हुआ, स्ट्राइक थ्रू किया हुआ, ये वर्ड निकाल देना चाहिए। जो ही डेटा ब्रीच होता है तो डेटा कंट्रोलर अनड्यू डिले नहीं होना चाहिए, विदाउट डिले होना चाहिए। अनड्यू क्या होता है? इसको आप लीगली इसको आप खेल सकते हैं इसके साथ, इस अनड्यू वर्ड के साथ, तो ये अनड्यू का लफ्ज निकाल दिया जाए। अच्छा, और फिर कहा गया कि वेयर रीजनेबली पॉसिबल, जहां पे रीजनेबल पॉसिबल हो तो तब फिर आप नोटिफाई करें। अब ये रीजनेबल पॉसिबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब तो ये कि आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि वो उसको नोटिफाई ना करे, तो ये वेयर रीजनेबली पॉसिबल का वर्ड भी निकाल दिया जाए। अच्छा, सेकेंडली फिर नीचे चल के ये जो आखिर में बोल्ड लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट वेयर द पर्सनल डेटा ब्रीच इज अनलाइकली टू रिजल्ट इन अ रिस्क टू द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ डेटा सब्जेक्ट। यानी कि डेटा चोरी करवा दिया आपने मेरा, और फिर आप ही डिसाइड कर रहे हैं, वो डेटा कंट्रोलर या डेटा प्रोसेसर ही डिसाइड कर ले कि ये डेटा मैंने चोरी तो करवा दिया है, लेकिन चोरी हो जाने के बाद जिसका डेटा चोरी हुआ है उसके राइट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो फिर मैं नोटिफाई नहीं करूंगा। सो दिस इज अगेन, ये तो आप ये कह रहे हैं कि आप नोटिफाई ना करें,
सो इसलिए ये भी रिमूव कर देना चाहिए। अच्छा, अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डेटा इज अलाउड, ठीक हो गया, ये बहस खत्म हो गई है। आपका डेटा है वो आप पाकिस्तान से बाहर स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कर लें, उसमें कुछ हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, उनको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक इट इज ओके इफ इट इज डन ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, ठीक है। ये कंडीशन भी आप कंट्रीज के साथ रेसिप्रोकल बेसिस पे आप इस्टेब्लिश करें, और उसके साथ साथ उस डेटा की कॉपी पाकिस्तान में भी इंश्योर करें कि मौजूद रहे। अच्छा, साथ साथ इसमें क्रिटिकल पर्सनल डेटा शैल ओनली बी प्रोसेस इन अ सर्वर और डेटा सेंटर लोकेटेड इन पाकिस्तान, लेकिन वो अलाउ तो किया है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, लेकिन क्रिटिकल बिजनेस डेटा को अलाउ नहीं किया है, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही रहेगा, सर्वर वो उसका या डेटा सेंटर उसका पाकिस्तान में ही होगा। क्रिटिकल पर्सनल डेटा क्या होता है उसकी डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, सेक्शन 2 में लिखी हुई है, वो पढ़ी जा सकती है। अच्छा, अब इसमें सेक्शन 30 में कुछ इसकी एक्सेप्शन है कि इसको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। किसको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है वो अभी देख लेते हैं कि पर्सनल, फैमिली, हाउस होल्ड अफेयर्स, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए अगर डेटा कोई कलेक्ट कर रहा है या प्रोसेस कर रहा है तो फिर इस डेटा की जो प्रोविजंस है उसके साथ कंप्लाई करना जरूरी नहीं है। अब वो एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, क्लब्स हो गए, होटल्स हो गए, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गई, आपकी परचेजिंग हिस्ट्री हो गई सुपर स्टोर्स की, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री हो गई। तो ये जो पर्सनल, फैमिली, हाउस होल्ड अफेयर्स या रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए डेटा अगर कलेक्ट किया जा रहा है या प्रोसेस किया जा रहा है तो फिर ये लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, और कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा? एफबीआर पे एप्लीकेबल नहीं है। एफबीआर मेरे डेटा चोरी करवा दे, कोई मसला नहीं है, इस लॉ को एप्लीकेबल नहीं किया गया एफबीआर को। कस्टम्स पर एप्लीकेबल नहीं किया गया है इस लॉ को, एक्सेप्शन लिख दी गई है इसमें। एक्साइज पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, वो मेरा डेटा चोरी करवा बैठता है तो कोई मसला नहीं है, चोरी करवा दे। और उसके साथ साथ यानी कि कोई भी अथॉरिटीज जो कि टैक्सेशन या ड्यूटीज या इस किस्म का काम करती हैं तो उन पे ये इस लॉ के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट। अच्छा, और क्या क्या नहीं होगा? इवन ये कि उनको कंसेंट लेने की जरूरत भी नहीं है अंडर सेक्शन 5 ऑफ दिस लॉ, कोई मसला नहीं है। टैक्सेशन के लिए आपने डेटा कलेक्ट करना है, प्रोसेस करना है तो आप मेरी मर्जी के बगैर भी कर लें, कोई मसला नहीं है, ओके है। और उसके साथ साथ नोटिस टू डेटा सब्जेक्ट्स अबाउट कलेक्टिंग और प्रोसेसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 6, इसमें भी कोई मसला नहीं है कि आप कंसेंट भी ना लें और नोटिफाई भी ना करें कि आप कलेक्ट कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि आप टैक्सेशन पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, फाइन, नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आता है कि आप ये भी कह रहे हैं कि वो नॉन डिस्क्लोजर भी उसमें आपने एक्सेप्शन दे दी है उसको, सेक्शन 7 में जो रिक्वायरमेंट है उसको भी आपने एक्सेप्शन दे दी है। और उसके साथ साथ जो इसमें सेक्शन 8 है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और प्राइवेसी ऑफ डेटा को इंश्योर करने के लिए, उसकी भी आपने एक्सेप्शन दे दी। तो आई थिंक ये दो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में प्रॉब्लम्स हैं, इसको देखना चाहिए। अच्छा, अब इसमें आगे चलते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। इस पे हमने कहा है कि ये एक अथॉरिटी बनेगी अंडर सेक्शन 32, उसमें एज की कोई लिमिट्स डिफाइन नहीं है। जिस तरह आपका ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, उसमें जो उसके मेंबर्स हैं या उसके जो चेयरमैन है उसकी कोई एज लिमिट डिफाइन नहीं है। 80 साल, 85 साल, 90 साल का बंदा भी उसका चेयरमैन या मेंबर आप बना सकते हैं। सो आई थिंक इसका ये काम इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं होना चाहिए, एज डिफाइन कर देनी चाहिए, ना लोअर एज डिफाइन है ना मैक्सिमम एज डिफाइन है। अच्छा, उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि 3, इसमें कॉम्पोजिशन क्या है कि 7 मेंबर्स होंगे और वो 7 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स जो हैं वो आईटी एक्सपर्ट्स होंगे। ओके, फाइन हो गया, समझ में आ गई बात। अभी आगे चलते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। और उसके साथ साथ इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को आपने सिविल कोर्ट का दर्जा दे दिया है, यानी कि ये अथॉरिटी जो है वो लीगल ऑर्डर्स भी पास कर सकती है और इस अथॉरिटी के पास शुदा इस
अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स हैं, जो डिसीजंस हैं, वो सिर्फ हाई कोर्ट में ही अपील हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें 7 इसके जो मेंबर्स होंगे उसमें से 3 IT एक्सपर्ट्स होंगे, लेकिन इसमें से इन 7 में से कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी का एक्सपर्ट होना लाजमी नहीं करार दिया गया है। सो आई थिंक ये इसमें बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है। IT एक्सपर्ट तो हो सकता है, उसको नेटवर्किंग का पता है, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पता है, लेकिन उसको साइबर सिक्योरिटी का नहीं पता, तो वो कैसे प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी को इंश्योर करेगा? उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, लेकिन उसको साइबर सिक्योरिटी नहीं आती, तो वो कैसे इंश्योर करेगा कि इसको किस तरह लेके चलना है? तो ये IT एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए हैं इसमें। ओके, अच्छा, फिर आप ये कह रहे हैं कि ये जो अथॉरिटी बनेगी, दिस अथॉरिटी इज एंड विल बी एन ऑटोनोमस बॉडी। आपने इसको जब ऑटोनोमस करना है, तो फिर इसके जो आप रिप्रेजेंटेटिव है मिनिस्ट्री ऑफ IT या टेलीकॉम से क्यों ले रहे हैं? वो तो ऑटोनॉमी खत्म हो गई उसकी। फिर आप उसका एक मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्यों ले रहे हैं? इस तरह तो इस अथॉरिटी की जो ऑटोनॉमस है, जो वो ऑटोनॉमी खत्म हो गई। और इसी तरह आप कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी लेंगे, तो ये तो आपकी ऑटोनॉमी जो है वो खत्म हो गई। आपने इन तीनों मिनिस्ट्री से कोई बंदा नहीं लेना है। आपने ऑटोनॉमी इंश्योर करनी है, तो आपने मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं लेने हैं। और जो फिर चौथा बंदा रह जाता है वो आपका ICT का होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो ICT का क्यों हो, वो साइबर सिक्योरिटी का होना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी। इट हैज नथिंग टू डू विद IT. IT is a separate subject, ICT is a separate subject, and cyber security, privacy, data privacy is a very specialized subject. Please try to understand what I'm trying to say here. अब इसमें आप रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, या आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉइज को, या पुलिस के, या जुडिशरी के रिटायर्ड जजेस को, या मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर आप लेंगे, तो इस अथॉरिटी की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो रिटायर्ड लोग होते हैं या सर्विंग लोग होते हैं, उनका काम करने का एक तरीकाकार होता है। वो अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बहरहाल अंडर इन्फ्लुएंस ही काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको ऑटोनॉमी रखने के लिए आपको इन जगहों से लोग नहीं लेने होंगे, क्योंकि आपने इसकी ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को आपने इंश्योर करना है। और वो आपने इसको इंश्योर करने का तरीका यही होगा, अगर आप ये सब नहीं करते जो इसमें लिखा हुआ है, तो इसकी ऑटोनॉमी जो है वो सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगी। अच्छा, मैं अब बस जल्दी से खत्म करता हूं, क्योंकि आई एम बीन टोल्ड दैट आई एम टेकिंग टू मच टाइम। अच्छा, अब इसमें सेक्शन 34 में इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ये अथॉरिटी क्या करेगी। प्राइवेसी के बारे में ये डिक्लेयर करेगी कि प्राइवेसी क्या होती है, किस तरह इंश्योर करना है, ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स क्या होंगे, पर्सनल डेटा ब्रीच के बारे में है, डेटा प्रोटेक्शन, इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे होगी, रिकॉर्ड मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, डेटा का ऑडिट्स किस तरह होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स क्या होंगी, प्रोसेसिंग बाय एंटिटीज अदर देन डेटा कलेक्टर्स क्या होंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कंट्रोलर्स क्या होंगी, ये सारी चीजें अभी करनी है। ग्रीवेंस ऑफ रिडर्सल मैकेनिज्म क्या होंगे, ये सारी चीजें करनी है। फॉर्मुलेट अ लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर डेटा कलेक्टर्स एंड डेटा प्रोसेसर डिफाइन करने होंगे। बहुत सारी चीजें इसमें करनी है इस अथॉरिटी ने, वो पहले कर ली जाए। ये 6 महीने बाद बनेगी, फिर वो इसके ये सारी चीजें बनाएंगी, तो ये तो बहुत लंबी 5 साल मंसूबा बन जाएगा। ये काम पहले करना शुरू कर दिया जाए। आई होप के कर दिया गया होगा, हमें मालूम नहीं है शायद, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो करना शुरू कर दिया जाए। अच्छा, मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी इसमें लिखा गया है कि वो की जाएंगी, मिनिमम नंबर है, फ्रीक्वेंसी है, और ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। वो मेंशन नहीं है कि कितनी मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी, मीटिंग्स करना जरूरी है, वो इसमें नहीं लिखा हुआ। So that's it. Thank you very much for your time, and this is my contact information. If you want to contact me afterwards, you want to call me, you're most welcome. I'm available via email on the or on the phone. And thank you very much for your time. Dr. Rafi, over to you, and thank you very much for giving me some more time than I actually was necessary. Thank you so much, Asif Saab. Very insightful. As I said in very start, it's a broader subject.
and it cannot be basically covered in 1 or 2 sessions, because इसके हर एक section पे अगर हम थोड़ी सी debate करना शुरू करें तो it might require session each for each section. So before consuming more time, I'll request Jannat if she's around for her comments. Jannat, we can go over 5 o'clock. This is okay. इसमें कोई time bound नहीं है, so we can take as much time as we want, and we have all the audience with us. थैंक यू वेरी मच सर. वैसे तो मैंने बहुत ब्रीफ कमेंट्स देने हैं बिकॉज एवरीथिंग एल्स हैज बीन कवर्ड. मैं ज़्यादा जो एक चीज़ समझने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि हमारी क्या साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है पाकिस्तान की, स्पेशली जब हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र की बात करते हैं और डेटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं, तो एक बड़ी कंफ्यूज सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं. हमने जो एक सिटीजन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन हार्म रूल्स भी आए थे, उनमें भी हमने वही सिमिलर चीज़ें देखी हैं डेटा लोकलाइजेशन के हवाले से जो हमने इस बिल में देखी हैं. जैसे कि इस बिल में तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इंटरमीडियरीज का जिक्र ही नहीं है कि उनके ऊपर ये बिल किस तरह अप्लाई करेगा, बिकॉज उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया इधर आने से. और वो जो एक मिरर प्रोविजन डाली हुई है जहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक तो ये है प्रोविजन शुरू में कि जहाँ पे जो जिस तरह सरशान ने कहा था कि जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे आना पड़ेगा जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके, और उसमें उन्होंने एक प्रॉब्लम ये भी है जो कि मुझे जो कि उन्होंने कहा है कि वो कैटेगराइज करेंगे कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल प्राइवेट कंपनीज को. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये करना पहले भी ज़रूरी है, बिकॉज अभी तो उन्होंने एक ही फाइन जो है 10 मिलियन का वो रखा है जो कि वो किसी भी पे भी इम्पोज कर देंगे, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस है, लार्ज स्केल बिजनेस है, और ये जो है वो इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं इस तरह कर सकते. तो उसमें भी कैटेगराइजेशन की ज़रूरत है लायबिलिटी के हवाले से. और उसके अलावा हम इस तरह दिख रहे ख़ास तौर पे जितने स्टार्टअप्स हैं, ख़ास तौर पे टेक कंपनीज और टेक सेक्टर में आना ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत लोग डिसवेड इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि हमारे जैसे कि कॉपीराइट लॉज हैं या जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं वो इतनी एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं देते ऑलरेडी कि अगर कोई फॉरेन अगर कंपनी है या लोकल कंपनी भी है, अगर वो काम करना चाह रही है और वो डेटाबेस अपना ला के सेटअप पाकिस्तान में रखते हैं तो वो ऑलरेडी एक बड़ा एक्सपेंसिव मतलब वो उसमें बहुत ज़्यादा एक आपको सब्सटैंशियल किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. तो वो आप इधर ला के रख रहे हो और आपको ऑलरेडी कॉपीराइट्स जो है एक्ट है वो नहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहा. उसके एक वो ऑलरेडी एक हर्डल है. उसके अलावा आप देखते हो कि डेटा प्रोटेक्शन लॉज में भी किस तरह हिंड्रेंसेस हैं, उस तरह से भी इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं, खासतौर पे टेलीकॉम फॉर इंस्टेंस, जिनकी पेरेंट कंपनीज अगर जैसे कोई चाइना में है या कोई और किसी कंट्री के अंदर है, एंड आई एम श्योर जिस तरह होता है कि वो आपस में डेटा शेयर करते हैं. तो जो इस तरह की चीज़ें हैं कि टेलीकॉम को किस तरह ये लॉ अफेक्ट करेगा, स्मॉल स्केल बिजनेसेस को किस तरह करेगा, हॉस्पिटल्स को किस तरह करेगा. अब गवर्नमेंट की उन्होंने एक बड़ी ब्लैंकेट सा वो डाला है, गवर्नमेंट ना उन्होंने पब्लिक बॉडीज का लफ्ज इस्तेमाल किया. अब गवर्नमेंट में कौन कौन से इदारे आते हैं, क्या पब्लिक हॉस्पिटल्स आते हैं, लाइब्रेरीज आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो डेफिनेशंस में बिल्कुल उस तरह से क्लैरिटी नहीं है. दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह सेंसिटिव पर्सनल डेटा की बात की, उसकी डेफिनेशन की, अब हमने इंडियन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी देखा है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर स्टेटस को भी डिफाइन किया है, उन्होंने जेनेटिक डेटा को बताया है, उन्होंने हेल्थ डेटा को बताया है, और फिर उन्होंने ऑफिशियल आइडेंटिफायर जो है आधार को भी मेंशन किया है. अब हमारा ये है कि CNIC जो कि एक जैसे सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको CNIC का इस्तेमाल करना है, आपको हर चीज़ के लिए चाहे पब्लिक सर्विस हो प्राइवेट सर्विस हो CNIC का इस्तेमाल करना है, और उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है. CNIC खुद उसका जो नंबर है वो आपको वैसे ही मतलब इतना वनरेबल कर देता है. उसमें खानदान नंबर होता है, फिर उसके अंदर जो लास्ट डिजिट होता है अगर वो ऑड हो तो वो मेल का होता है, या आई थिंक वो फीमेल का होता है अगर वो इवन हो. इतनी और भी चीजें हैं, और आप नंबर्स पे टेक्स्ट करके पूरे जो आपका खानदान है उनका डेटा निकलवा सकते हैं. और
नादरा जो कि सबसे बड़ी रिपोजिटरी है हमारा डेटा जिनके पास है, उनको किस तरह, मतलब वो किस तरह डिफरेंट हैं बाकी और गवर्नमेंट की उससे, इसमें इनको डिफाइन करने की जरूरत है। और जिस तरह इंडियन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में उन्होंने सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज का अलग से जिक्र किया है, और उनके ऊपर किस तरह लॉ डिफरेंटली अप्लाई करेगा। आई थिंक हमारे उसमें भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अभी भी अगर एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो जो ऑनलाइन हार्म रूल्स हैं वो अभी तक बड़ी क्वेश्चनेबल बात है कि क्या वो अभी एप्लीकेबल हैं या नहीं हैं, और उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिबेट हुई। लेकिन मैंने काफी चीजें देखी हैं जो कि ऑनलाइन हार्म रूल्स के अंडर जो अथॉरिटी को पावर दी गई थी, वही चीज हमने इसमें भी देखी है। और इधर जो सबसे प्रॉब्लमैटिक बात आती है सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर, जिस तरह शाह सर ने बात की कि आपने जुडिशियल पावर भी दे दी है उसको, अथॉरिटी को, वो हाई कोर्ट के भी सारे फंक्शंस कर रहे हैं, वो सर्च एंड सीजर वारंट भी दे रहे इशू कर रहे हैं, वो एविडेंस भी ले रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं ये। उसके अलावा वो जो है इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि अगर कोई ब्रीच होगी तो जी आपका वो फैसिलिटेट करेगी या हेल्प करेगी जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं उनको। फिर उसके अलावा जो लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क जिसकी बात हुई थी वो करेगी, और लाइसेंसेस वो इशू करेगी। आपने इन्वेस्टिगेशन का काम, जो कि आप अगर एफआईए से कंपेयर करें तो एफआईए से ज्यादा पावर्स हैं इस अथॉरिटी के पास, एफआईए और पीटीएस को मिला के, क्योंकि दोनों रेगुलेटरी और इन्वेस्टिगेशन पावर्स भी हैं, और फिर इनके पास कोर्ट की पावर्स भी हैं जो जुडिशियल पावर्स हैं, जो नहीं होनी चाहिए। और अगर आप जो है पावर टू मेक फर्दर एग्जाम्पशंस, रूल्स रेगुलेशंस की बात करें तो वो फिर लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, और भी प्रोविजंस वो हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये है कि बहुत ज्यादा आर्बिट्री पावर्स अथॉरिटी को दे दी गई हुई हैं, और जो कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और फिर बात जिस तरह हुई कि ये बाकी लॉज के साथ कैसे कंप्लाई करेगी। अब इतने ज्यादा कवानीन है, जैसे डेटा रिटेंशन के ऊपर इसमें प्रोविजन है, और इधर कहा हुआ है कि जी आपको बस जितनी देर के लिए जरूरत हो डेटा आपने उतनी देर के लिए रिटेन करना है, और उसके बाद आपने परमानेंटली डिलीट कर देना है। अगर आप पीका का एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 उठाएं, उसमें उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक मिनिमम 1 साल का रखा है, मैंडेट किया है कि आप ट्रैफिक डेटा जो है 1 साल मिनिमम रिटेन करें, और मैक्सिमम कुछ नहीं दिया, तो बेसिकली वो जितनी मर्जी दे रखे। अब आपने कहा है कि जी ये वाला ये जो रूल्स हैं, ये जो एक्ट आएगा ये सुपरसीड करेगा बाकी चीजों को। अब नादरा ऑर्डिनेंस के अंदर भी एक प्रोविजन है जो बात करती है कॉन्फिडेंशियलिटी की, और अगर ब्रीच होती है किसी एम्प्लॉय की वजह से तो उसके लिए भी पेनल्टी है, उसमें भी क्रिमिनल पेनल्टी है। तो ये लॉज किस तरह अप्लाई करेंगे, एक ये बहुत ज्यादा ओवरलैप आ रहा है यहाँ पे, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। जैसे सर ने पहले कहा कि इनको, बिकॉज ये लूप होल रह जाते हैं, और यही हमने देखा है कि अब्यूज होते हैं। उसके कोरम में भी बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का होना जरूरी है, और इतनी ज्यादा मिनिस्ट्रीज जो कि आई थिंक इररेलेवेंट हैं टू दिस थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वगैरह, और उनकी आई थिंक रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है इधर। लेकिन ये है कि इधर इसमें ये भी प्रोविजन है कि एट अ सब्सीक्वेंट स्टेज जो है वो और इसके मेंबर्स डाल सकते हैं, और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इतनी वाइड पावर्स हैं कि वो बाद में स्कोरम को बिल्कुल ही जो है, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन इसको फिर भी जो मर्जी वो कर सकते हैं इसके साथ। तो इस लॉ के साथ जो है वो प्रॉब्लम ये है। उसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी कंसेंट की। कंसेंट में भी जो है कंसेंट की डेफिनेशन में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन मानी जाती है जीडीपीआर की भी जिस तरह है, उसमें यह है कि कंसेंट जो होता है वो होता है टाइम लिमिटेड, और कंसेंट जो होता है वो होता है कि आप किसी टाइम पे भी वो रिवर्स हो जाता है, इट्स रिवर्सिबल। लेकिन हमने यहाँ पे प्रोविजंस देखी हैं जहाँ पे आप जो है कंसेंट टाइम लिमिटेड नहीं है, क्योंकि अगर आपको डेटा कलेक्शन के लिए विद इन अ ईयर अगर आपको दोबारा वो डेटा यूज करना है तो आपको उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है डेटा सब्जेक्ट की, जो कि ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक बात है। उसके अलावा जो है मैं डिस्कस करना चाहूंगी, इसमें जो मैंने लॉ में एक और इशू देखा है वो ये है, जिस तरह
पहले भी बात हुई कि हाईलाइट नहीं किया गया, और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि जितने भी लोग जो भी प्राइवेसी के इश्यूज या प्राइवेसी के मसले होते हैं ऑफलाइन स्पेसेस में या असली ज़िंदगी में, वो ही ट्रांसलेट होते हैं ऑनलाइन स्पेसेस में। और हमने ज़्यादातर यही देखा है कि ज़्यादातर केसेस में जहाँ 70% केसेस में जहाँ ऑफलाइन अगर कोई हरासमेंट है या किसी किस्म की कोई प्राइवेसी की वायलेशन है, वो ऑनलाइन स्पेसेस में भी ट्रांसलेट करती है और होती है। तो इसलिए, और ज़्यादातर क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेटली इफेक्ट जो होती हैं वो माइनॉरिटीज़ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, ट्रांसजेंडर्स होती हैं, और जो इस तरह के हमारे सोसाइटी में लोग हैं इनकी, और जिस तरह के बाकी के भी डेटा प्रोटेक्शन बिल्स में इनको और दुनिया में इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है और इनको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इधर होना। उसके अलावा जो है इस में एक दो और चीज़ें भी हाईलाइट करना चाहूँगी। एक ये है कि ब्रीच जो है कोई भी डेटा सब्जेक्ट, उसको जितना भी ज़्यादा नुकसान हो जाए, एक तो हार्म डिफाइन नहीं हुआ हुआ, और जितना भी ज़्यादा नुकसान हो जाए वो क्लेम नहीं कर सकता कॉम्पनसेशन। तो अगर वो कॉम्पनसेशन नहीं क्लेम कर सकता तो क्या मतलब ये है कि वो किसी और कानून के अंडर या अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनका फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है के अंडर भी कॉम्पनसेशन नहीं क्लेम कर सकते। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। एक ये भी है कि जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ख़ास तौर पे इसका बैलेंस किस तरह होगा, और इसकी जो ये लॉज हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके या मीडिया हाउसेस को लेके, उसकी एप्लीकेशन किस तरह डिफरेंट होगी फ्रॉम अदर कंपनीज या अदर जो है डेटा कंट्रोलर्स या डेटा प्रोसेसर्स। तो इसलिए एक जो ये कैटेगराइजेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ये है कि इन्होंने सेक्शन 2 सब सेक्शन G5 में इन्होंने थर्ड पार्टी का जिक्र किया हुआ है कि जो आप किसी भी थर्ड पार्टी को जो है ये ऑथराइज कर सकते हैं प्रोसेस करने के लिए डेटा विदाउट सब्जेक्ट्स कंसेंट। ये एक बहुत ज़्यादा वेग प्रोविजन है क्योंकि इससे ऊपर बकायदा उन्होंने थर्ड पार्टी को डिफाइन किया हुआ है। ये तो इसका कहने का मतलब है कि आप लिटरली किसी को भी ऑथराइज कर सकते हो। तो एक जो कंफ्यूजन जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन हार्म रूल्स निकालें उसमें फोकस जो है वो सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर है। उधर भी डेटा लोकलाइजेशन की बात हुई है, उधर भी मिररिंग प्रोविजन एक की बात हुई है कि जी जो बाहर प्रोसेस करेंगे डेटा जो कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा है वो उनको इधर आना पड़ेगा, पाकिस्तान में कॉपी सर्विंग कॉपी होनी पड़ेगी और रिप्रेजेंटेटिव होना पड़ेगा। वो ही एग्जैक्टली चीज हमने देखी थी ऑनलाइन हार्म रूल्स में। तो अब ज्यादातर जितने भी हम अगर साइबर क्राइम लॉज को भी उठा लें तो देखा है कि बजाय कि हम रेकनसाइल करें जो चीजें हमारे पास हैं, हम डुप्लीकेट करते रहते हैं लॉज, और वो ही पेनल्टीज जो हैं जिस तरह के एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हेट स्पीच है, हेट स्पीच की सजा जो है आपके पिनल कोड में फर्क है और हेट स्पीच की सजा पीका के अंदर फर्क है और बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशंस हैं। तो हमने यही देखा है कि इसमें बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से। और क्रिटिकल पर्सनल डेटा जैसी इन्होंने एक्सेप्शन डाली है कि इंडियन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी एग्जैक्टली ये प्रोविजन है जहां पे गवर्नमेंट जो है वो एट एनी सबसीक्वेंट स्टेज नोटिफाई कर सकती है जब वो चाहे अगर किसी को एग्जेम्प्ट करना। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है। तो ये मेरे ख्याल में अगर ह्यूमन राइट्स लेंस से भी देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स को नहीं प्रोटेक्ट करता, ना कोई जर्नलिस्टिक उसकी बात है, एक्सप्रेशन को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, कोई विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन या जिस तरह GDPR में जिक्र है इन चीज़ों का। और ख़ास तौर पे जिस तरह हमने अपनी कंट्री में एक माहौल देखा है कि आ जाता है और जिस तरह डिसिडेंट्स या डिसेंट जो लोग नहीं अग्री करते मेन स्ट्रीम उसके साथ उनके साथ क्या होता है। तो ये तो एक बिल्कुल मेरे ख्याल में ये एक लोगों को ये राइट्स को सब्जुगेट करने का तरीका है रादर देन प्रोटेक्टिंग या अपहोल्डिंग देयर राइट्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा वाइड पावर्स हैं अगेन अथॉरिटी के पास
और लोगों का जो ओनरशिप है डेटा की वो फिर भी स्टेट के पास ही है। डेटा प्रोटेक्शन बिल का मकसद ये होता है कि जो उसका सेंटर हो या हार्ट ऑफ द लॉ वो सिटीजन्स प्राइवेसी हो, सिटीजन्स डेटा प्राइवेसी हो। अगर इसकी प्रायोरिटी नहीं है ये, और अगर सिर्फ जो है स्टेट कंट्रोल कर रहा है, स्टेट ओन कर रहा है डेटा को, और वो कुछ हद तक जो है स्टेट कर रहा है, और वो प्राइवेट कंपनीज को और पब्लिक बॉडीज को भी वो दे रहा है कि दे कैन गेट अवे विद ब्रीचिंग माय प्राइवेसी, या अगर मेरा डेटा जो है मिसयूज होता है दे कैन इजीली गेट अवे विद इट। और जहां तक लीगल रिकोर्स की बात है, ऑलरेडी आपने हाई कोर्ट की पावर्स दे दी हुई हैं इन्हें। उसके अलावा जहां बात इस तरह की भी बात है जहां पे अब छोटी कंपनीज हैं जिनके पास जो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स नहीं रख सकते, अगर उनके पास डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं भी, अगर कोई ब्रीच होती है काफी दफा तो 6-6 महीने साल भी नहीं पता चलता कि डेटा ब्रीच हुई है। और अगर जिस तरह इसमें जिक्र हुआ है बिल के अंदर कि जो अथॉरिटी है वो इसमें भी फैसिलिटेट करेगी और जितना मतलब कर सकेगी ब्रीच के बाद। अब ना आपके पास कोई इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है, ना आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज है, ना आपके पास कोई टीम है, ना उसका कोई जिक्र है। तो आप एग्जैक्टली किस तरह फैसिलिटेट करेंगे? और ये भी हमें मानना जरूरी है, मुझे लगता है डिमांड करना जरूरी है, क्योंकि जो स्टेट है वो मतलब एक वाहिद जो है मोनोपोली रखती है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, वो एक लेजिटिमेट मोनोपोली सप्लायर है ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो उनका काम है जितने भी अगर डेटा सब्जेक्ट्स हैं, जितने इंडिविजुअल्स हैं, जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं या पब्लिक कंपनीज हैं, जो भी उनको फैसिलिटेट करना या इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स रखना, इतना ज्यादा बर्डन जो है कंपनीज के ऊपर डालना, वो भी बहुत वो जैसे कि उनसे अब ये भी बड़ी है कि इन्होंने ब्लर्ड लाइन यहाँ पे रखी है जहाँ पे जो डेटा अगर पाकिस्तान में डेटाबेस आता है वो कौन मतलब उसकी कॉस्ट बेयर करेगा, क्या वो गवर्नमेंट करेगी या क्या वो कंपनी करेगी? और अगर वो कंपनी करेगी तो फिर वो पाकिस्तान में क्यों ऑपरेट करना चाहेगी? तो ये जो ऑब्वियसली डिजिटल पाकिस्तान का विजन है, ये तो मुझे लगता है बिल बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाता है, बिकॉज ये अपने डेटा लोकलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर की प्रोविजंस है उनसे जो है ये फ्री फ्लो ऑफ डेटा जो है उसको कर्ब करता है, और ये बिल्कुल जो है मेरे ख्याल में तो नहीं उस तरह की इन्वायरमेंट पैदा करता जहाँ पे खास तौर पे टेक कंपनीज जो हैं वो आए और जो इकोसिस्टम है हमारा उसका हिस्सा बने, क्योंकि वो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज उनको इस तरह करता है। और एट द सेम टाइम पेनल्टी भी एक रखी हुई है जो कि 10 मिलियन की है, और उसमें भी नहीं बताया हुआ कि वो किस तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन एफआईए करेगी, और अगर एफआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो क्या इस एक्ट के अंडर करेगी? क्योंकि जो कहते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर प्रोविजंस हैं पीका के अंदर, ऑन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा है, इंटरफेरेंस है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, वो नहीं इन चीज़ों को एड्रेस करती। जितने भी अगर मैं इश्यूज की बात करूं एज अ लॉयर, जितनी भी चीज़ें अगर आती हैं, जैसे कि इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे फॉर इंस्टेंस एक केस था जहाँ पे सिनेमा में से एक जो उनकी सीसीटीवी फुटेज थी वो लीक हो गई। सीसीटीवीज के ऊपर कोई किस्म की कोई कवानीन नहीं है, और जिस तरह हमने देखा सेफ सिटीज अथॉरिटी के साथ ये होता है कि उन्होंने इतने लोगों को हरास किया उनकी, क्योंकि लाइसेंस का वो प्लेट आ जाती है नीचे, और अगर जो कपल्स बैठे हुए थे जो भी इस तरह जितने लोगों को वो हरास कर सकते थे उन्होंने किया उनका प्राइवेट डेटा इस्तेमाल करके। तो सेफ सिटीज टाइप जो गवर्नमेंट के अपने अदारे हैं उनके ऊपर किस तरह करेंगे, क्योंकि सेफ सिटीज को आरटीआईज फाइल किए गए, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं कभी आया। और मैंने देखा है कि जितने भी इस तरह के केसेस हैं जहाँ पे प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट्स हुई हैं लोगों की, उनके पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, ना वो पीका में कहीं जा सकते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटाबेस क्या है, उसमें वो फेसबुक के जो लोग अकाउंट्स हैक करते हैं उसमें तो वो वहां पे तो वो लगाते हैं इस तरह के प्रोविजंस। तो एक मसला ये भी है कि जितने लोग हैं, जिस तरह के पहले भी आसिफ साहब ने बात की कि
लोगों के पास टेक्निकल नो हाउ भी नहीं है, और जिस तरह के अगर आप इस तरह के लोग रखेंगे जो कि फ़र्क फील्ड से हैं या रिटायर्ड हैं या यहाँ से हैं वहाँ से फ़र्क इदारों से हैं, तो उनके पास तो वो एक्सपर्टीज़ है ही नहीं, ना वो साइबर क्राइम को समझ सकते हैं, और साइबर क्राइम लेजिस्लेशन के साथ भी अपने इश्यूज हैं। लेकिन जनरली अगर इसको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बड़ी कंफ्यूज्ड सी सिचुएशन है, जहाँ पे साइबर क्राइम लॉज भी मिक्सअप हुए हैं, उधर डेटा प्रोटेक्शन भी मिक्सअप हुई हुई है। आपने डेटा प्रोटेक्शन लॉ में भी क्रिमिनल पेनल्टीज डाल दी हैं और उसमें फाइन्स भी डाल दिए हैं, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? पीटीए जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसमें ये सोचा जा सकता है कि बजाय कि एक और नई अथॉरिटी आए जिसको इतनी ज्यादा पावर्स दे दे, जो कि पीटीए और एफआईए को मिला के उन दोनों के पास, तो क्यों ना कोई आपका जो एग्जिस्टिंग अदारा है उसको आप इतना एम्पावर करें कि वो जो है एक प्राइवेसी कमीशन के तौर पे, जिस तरह के आपने देखा कि इंफॉर्मेशन कमीशन है या आरटीआई के अंडर जिस तरह होता है, अगर उसी जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर को एम्पावर कर दिया जाए प्राइवेसी के उसके ऊपर भी, जर्मनी में जैसे कि एक सिटी में इस तरह होता है। तो और भी तरीके हैं जहाँ पे हमने देखा, जो कि ज्यादातर कंसर्न अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो मेरे सामने है वो ये है कि नई अथॉरिटी बनेगी, फिर आपने पहले एफआईए का हाल देखा साइबर क्राइम विंग का, वो इतने अंडर रिसोर्स्ड हैं। एक तो उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं बिल्ड की हुई, जजेस की ट्रेनिंग नहीं है, पूरा एक साइबर क्राइम इतने अरसा तो वो जो साइबर क्राइम के केसेस थे साइबर क्राइम के कोर्ट्स में चले नहीं, वो तो बहुत अरसे बाद हुए, और वो भी इतना चैलेंज हो सकते हैं लीगली, बिकॉज ये तो बिल्कुल एक्ट के अगेंस्ट बात थी। तो इतनी ज्यादा चीजें इसके अंदर आ जाती हैं जिनको कंसिडर करने की जरूरत है, जिसपे फिर आप सोचते हो कि बजाय कि एक नया अदारा बनाएं और उसको एम्पावर करें और डुप्लीकेट करते जाएं चीजें, क्यों ना आप एक एग्जिस्टिंग अदारे को ट्रांसपेरेंट बनाएं, एम्पावर करें और कोशिश करें कि आप उसको ऑटोनमस बनाएं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। जो इन्होंने बताया है कि एक ये कॉर्पोरेट किस्म की बॉडी होगी जो कि इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसका गवर्नमेंट के अंदर होगा, और वो खुद इन्वेस्ट भी कर सकेगी और कैपिटल रेज भी कर सकेगी, और वो अब इनिशियली जो है गवर्नमेंट उसको लीज पे भी चीजें दे सकती है, और इस तरह फंड्स जिस तरह भी वो रेज करेंगे, वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा सवाल उठता है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पे इंस्टीट्यूशन की। और खास तौर पे जिस तरह की हमने देखा है कि होता आ रहा है, ये या तो प्राइवेट कंपनीज जो कि बहुत बड़ी हैं वो इस चीज को मैनिपुलेट कर सकती हैं, या स्टेट खुद जो है वो हो सकती है। तो एसेंशियली फिर सवाल ये है कि क्या फिर इस तरह के लॉ की हमें जरूरत ही क्यों है जहाँ पे कोई सेफगार्ड्स नहीं है, और जो भी इन्होंने राइट्स हमें कहने को दिए हैं, इरेजर या ये सब, उसमें से बस आखिरी पॉइंट तो वो जो है उसमें भी ऑब्वियसली काफी ज्यादा हमें सेफगार्ड्स लाने की जरूरत है। मेरा सिर्फ कंसर्न ये बहुत अच्छी बात है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो आए पाकिस्तान में, लेकिन आई थिंक इसमें बैकग्राउंड में ये भी देखने चाहिए जो केसेस अभी तक हमारी हिस्ट्री में हुए हैं, जो कि अगर डेटा लीक्स हुए हैं नादरा की तरफ से हुए हैं, या अगर प्राइवेट कंपनीज या सिनेमाज या शॉपिंग मॉल्स या इस तरह की जगहों से हुए हैं, तो आपका जो आप ये लॉ बना रहे हैं, क्या आप इस तरह की चीजें जो हैं, मेरे पास रिकोर्स है कि मैं इस लॉ के अंडर अगर मेरे साथ कुछ इस तरह होता है तो मैं आ सकूं उसमें जो है, या कॉम्पनसेशन भी मांग सकूं या कुछ इस तरह कर सकूं। तो इस चीज को कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उस तरह तो फिर फायदा नहीं है इसका। ये तो सिर्फ लेजिटिमाइज कर रहा है एक तरह से कि स्टेट और प्राइवेट कंपनीज बस आपका डेटा कंट्रोल करें और मैनिपुलेट करें। आई थिंक दैट्स ऑल। मैं काफी ज्यादा क्रिटिक हो गया ऑफ द बिल। Right. Thank you so much, Jannat. We had very kind words from Asif Saab, and he thoroughly basically section by section जो है ना उन्होंने इसको tear apart किया, and Jannat आपके बड़े अच्छे comments थे, and you know if I define it कि कुछ जो basic principles थे, foundations थी जो इस act की, वो तो GDPR से borrowed लग रही हैं कि बड़े अच्छे concepts उन्होंने borrow किए, but then जब वो उसको tailor करने लगे अपने context से, तो
बहुत ज्यादा गैप्स जो हैं हमें नजर आ रहे हैं, और ऑब्वियसली राइटली पॉइंटेड आउट बोथ ऑफ यू दैट पावर और फंक्शंस में बड़ा गैप है, बिकॉज इसको इतनी स्वीपिंग पावर्स दे दी गई हैं और फिर उसका जो कंट्रोल है उसको बैलेंस करने की समहाउ कोशिश नहीं की गई। शुरू में जिस तरह से डिफाइन किया कि डेटा ब्रीच के, बिल्कुल उन्होंने बड़ा अच्छा डिफाइन किया कि डेटा ब्रीच होगा, देन एग्जाम्पशंस में एक्सेप्ट में जब उन्होंने इसको डिफाइन करना शुरू किया तो फिर लगता ही है कि एनीवन कैन बेसिकली बायपास दैट मैकेनिज्म, कि वस्तु को ब्रीच हो भी जाए तो नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दैट नीड टू बी लुक्ड इनटू वेरी केयरफुली। अगेन सिविल वर्सेस क्रिमिनल के जो बात हुई, दोनों पैनलिस्ट ने बड़ा अच्छा सो किया कि यार वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम ये क्या क्या करने जा रहे हैं। और फिर जन्नत ने बात की कि जो अगर हम इसको सिविल भी कर रहे हैं तो जो बाइफिकेशन है बिटवीन द स्मॉल डेटा प्रोसेसर्स एंड द कॉर्पोरेट वंस एंड द इंटरनेशनल जाइंट, जिनकी इकोनॉमी जो है शायद पाकिस्तान जैसे मुल्कों के बहुत सारे मुल्कों से ज्यादा उनकी इकोनॉमी है, उनको किस तरह से आप एड्रेस, बिकॉज शायद मैं नादरा को तो फिंगरप्रिंट साल में 1 या 2 दफा या जिंदगी में 4 दफा दूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे, जिस तरह गूगल का अगर मैं फोन यूज कर रहा हूँ और उस पर मैं फोन अनलॉक यूज करता हूँ तो लाइक आई सरेंडर माई बायोमेट्रिक फॉर लाइक नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे। सो इज दैट बीन एड्रेस्ड और नॉट समहाउ, या वो नहीं हो रहा? और मुझे लग रहा है कि वो नहीं हो रहा, बिकॉज जिस तरह हमने एप्लीकेबिलिटी देखी है लॉ की स्टार्ट में, तो उसमें भी ये था कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फिर तो लॉ लगेगा, या आपका रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में है तो फिर लॉ लगेगा। लेकिन अगर एक कंपनी बैठी हुई है या कोई ऐसा ग्रुप बैठा हुआ है जो कि मेरा डेटा हार्वेस्ट कर रहा है आउटसाइड पाकिस्तान विदाउट नोटिफाइंग एनीबॉडी, तो ये लॉ मुझे एज अ सिटीजन मेरी प्राइवेसी को कैसे इंश्योर करता है? अगेन हमने लाइसेंसिंग पे बात की कि लाइसेंसिंग नहीं होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन। इसमें एक रशिया का बड़ा अच्छा मॉडल है जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी डेटा कंट्रोलर प्रोसेसर्स हैं वो एक अथॉरिटी के साथ रजिस्टर हो जाएं, और अगर वो रजिस्टर हो जाते हैं तो दे कैन बेसिकली, और फिर वो ये भी अपना जो उसका जो एट्रीब्यूट्स हैं डेटा के वो भी रजिस्टर करा लें कि जी मैं पार्टी एक्स हूं, मैं प्रोसेस करूंगा और मैं ये 6 एट्रीब्यूट्स करूंगा, या मैं 50 एट्रीब्यूट्स करूंगा, या मैं बहुत बड़ी टेक कंपनी हूं और मैं, मेरा ओएस भी लोग इस्तेमाल करते हैं फोन पे और मैं फ्री सर्विसेज भी देती हूँ, लोगों को मैप भी देती हूँ, रास्ता भी दिखाती हूँ, लेकिन मैं जो है वो लोगों की मोबिलिटी को नहीं ट्रैक करूंगा या करूंगी। अगर वो कर रही है तो प्लीज वो कंपनी शुड कम फॉरवर्ड एंड बताए लोगों को कि जी मैं आपका मोबिलिटी का डेटा कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहा हूं। अगर फेसबुक का मैसेंजर जो है आपकी वॉइस की बेस पे आपकी प्रोफाइलिंग करके आपको कस्टमाइज एड्स दे रहा है तो दे शुड बेसिकली रजिस्टर्ड विद दैट अथॉरिटी, और वो बताया कि हम कौन कौन से प्रोफाइल एट्रीब्यूट्स पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को प्रोफाइल कर रहे हैं इंडिविजुअल के। और अगर उस पर ब्रीच अगर कहीं से प्रूफ होता है तो फिर अथॉरिटी को एक्ट करना चाहिए उस पे। लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क को हमें लुक इन देखना चाहिए कि इसको हम इतना सख्त ना कर दें कि हम इज माय स्क्रीन विजिबल? नॉट येट। ओके, आई थिंक हमने राइट बस इसको कंक्लूड करते हैं जी। और ये 2-4 रिमार्क्स जो थे आखिर में उनकी तरफ हम जाना चाहेंगे। एक पॉइंट जो रह गया था वो एग्जाम्पशंस और पावर, ऑब्वियसली बड़ी थॉरली इस पे बात हुई। जो जन्नत ने बड़ी अच्छी बात की, प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, इसको मेरे ख्याल से फोकस करने की जरूरत है। और इस पे एग्जाम्पशन क्लियर कट जीडीपीआर में है कि अगर वो बच्चा है, माइनर है, तो उसका जो पर्सनल डेटा है उसको आप सेंसिटिव के तौर पे ही ट्रीट करेंगे, और एग्जाम्पशंस जो सर्टेन एग्जाम्पशंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगी उस पे। तो इसको हमें केयरफुली देखने की जरूरत है। फिर हमें R&D को देखने की जरूरत है। हमने एग्जाम्पशंस में स्वीपिंगली उसको एग्जाम्पशन दे दिए, बट अगर एक कंपनी आती है और वो बायोमेट्रिक डेटा या जेनेटिक डेटा को R&D के कॉन्टेक्स्ट से हार्वेस्ट करके चली जाती है, तो उसमें व्हाट आर द जो सब्जेक्ट डेटा सब्जेक्ट है उसके लिए क्या एड्रेसल है, उसको क्या उसके लिए क्या एग्जाम्पशंस है। तो आई थिंक वी हैव समड इट ऑल। और फिर बड़ी अच्छी बात हुई जिसपे हमने कहा कि ये एक इदारा बड़ा अच्छा बन रहा है और जबरदस्त है, अथॉरिटी हो जाएगी, बड़ा पावर भी आ जाएगी, लेकिन व्हाट इज द टेक्निकल कैपेसिटी ऑफ दैट, और स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ नेशनल सर्ट एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, कैन इट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस फ्रॉम बेसिकली सीजर। और जो हमें वो ईटीओ का सेक्शन देखा, सेक्शन 5, जिसमें वो मैंडेटरी करता है हर इंफॉर्मेशन सिस्टम ओनर पे कि वो उसके पास साल के जो है इंफॉर्मेशन लॉग्स होंगे, तो क्या ये उसको सुपरसीड करेगा? और करेगा तो फिर हम कैसे इंश्योर करेंगे कि जो क्रॉस सेक्टोरल डेटा है उसको हम उसकी इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक्स ये इदारा कर सके, जबकि इस
एक्ट में कोई फोरेंसिक कैपेसिटी का जिक्र ही नहीं है। ये हमने कुछ किया है कंपैरिजन, विल बी कमिंग बैक, हम नेक्स्ट सेशंस करेंगे उसमें ये कंपैरिजन थॉरली प्रेजेंट करेंगे कि पाकिस्तान में जो एक्ट है उसमें अगर फॉर एग्जांपल एक जो प्रोसेसिंग फॉर द पर्सनल डेटा है उसका और जो रीजनल लॉ है फॉर एग्जांपल कोई और मुल्क है वो उसको कैसे डील कर रहा है और जीडीपीआर उसको कैसे डील कर रहा है। सो दीज आर द प्रोविजंस और कमिंग बैक वेयर वी स्टार्टेड एंड आई थिंक दिस इज वेयर वील कंक्लूड फॉर टुडेज सेशन विद अ स्पेशल थैंक्स टू बोथ ऑफ आवर पैनलिस्ट एंड आवर व्यूअर्स। This is what we started with कि this is the data regime in the world, जिसमें सबसे ज्यादा जो सख्त लॉज हैं वो इस वक्त यूरोप में हैं जो कि कंज्यूमर फोकस्ड हैं। तो इसमें देखिए तीन पार्टीज, जैसे हमने कहा कि तीन मेजर हमारे पास पार्टीज हैं जो कि काम कर रही हैं। एक अथॉरिटी है जो कि इसको लुक आफ्टर करती है, एक सिटीजन है और एक जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो कंट्रोलर्स हैं या प्रोसेसर्स हैं। तो जीडीपीआर अगर हम कहते हैं सबसे ज्यादा सख्त कानून है वो इस वजह से कि वो कंज्यूमर फोकस्ड है, वो सिटीजन फोकस्ड है और वो सिटीजन सेंट्रिक है और उसके राइट्स की बात करता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास नॉन अफेक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, जिसमें फॉर एग्जांपल चाइना है और कुछ और कंट्रीज उसमें आते हैं। उसमें जो डेटा की ओनरशिप है वो स्टेट के पास लाया करती है और वो इंटरनेशनल जो भी उसका क्रॉस बॉर्डर डेटा होता है तो उसमें डेटा सब्जेक्ट जो है उसके लिमिटेड राइट्स होते हैं, बाकी राइट्स सारे स्टेट के होते हैं कि वो उसकी मर्जी है डेटा के साथ क्या करता है। यूरोप के अगर हम लॉ को देखें उसकी फाउंडेशन ये है कि इज अ डेटा सब्जेक्ट फोकस लॉ। तो पाकिस्तान में शायद हमने दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन हमने एग्जाम्पशंस में शायद वी हैव गॉन टू फार एंड टू ओपन and especially with the powers with the limited capacity। और अगर हम स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी देखें तो जन्नत has very rightly pointed out कि NR3C is a classic example to see to the delivery of services in context of cyber crimes where we have 50,000 plus कंप्लेंट्स अक्रॉस द पाकिस्तान। और उसमें से अगर हम देखें कि उनमें से एक्चुअली कंक्लूसिव कितनी हुई जिन पे सजा हुई तो शायद उनका नंबर 100 से भी कम होगा। उसका रीजन ये है कि कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट इज नंबर 1 एंड उसमें रिसोर्सेज भी आते हैं, उसमें मैन पावर भी आती है, उसमें टेक्निकल कैपेसिटी भी आती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। वन ऑफ द एस्पेक्ट इज कि वी डोंट हैव द अथॉरिटी और कंट्रोल ओवर द डेटा जो इसके अराउंड वो केसेस फाइल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो फेसबुक के पास डेटा है तो उसके अराउंड केस आता है तो फिर अथॉरिटी कैन नॉट डू मच जब तक फेसबुक उसको कंप्लाई नहीं करेगा। सो दीज आर द गैप्स, दीज आर द चैलेंजेस। ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि हम इंडस्ट्री बंद कर दें, ये भी नहीं हो सकता कि सख्त कानून ले आए। वी हैव टू बैलेंस इट आउट एंड बट हाउ वी हैव टू बैलेंस इट आउट, दिस इज व्हाट द चैलेंज इज फॉर ऑल ऑफ अस टू सॉल्व फॉर द गवर्नमेंट। एंड आई थिंक we'll be coming back for the next sessions और inshallah we'll be focusing on a lot of other parameters जो कि इस लॉ के अराउंड भी हैं और some of other exciting जो concepts हैं। For example, how the whole data regime is affecting the users. I tried to address some of the comments जो questions थे, हमने कोशिश की कि उनको एड्रेस करें। डेटा सब्जेक्ट्स में वो सारे लोग आते हैं जिनका डेटा जो है वो किसी भी प्रोसेसर के पास है, कंट्रोलर के पास है, चाहे वो टेलको है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है किसी। और व्हाई इज इनक्रिप्टेड डेटा केप्ट आउट ऑफ द स्कोप, बिकॉज उनका ख्याल ये था कि इंक्रिप्शन हो जाती है तो फिर उसके बाद डेटा ब्रीच जो है वो शायद इतना इफेक्टिव नहीं होता। बट आसिफ साहब हैज बेसिकली क्रैक्ड अ पार्ट के इंक्रिप्शन जो है इट्स नॉट अ गारंटी कि इसको हम एग्जाम्प्ट करें। मेरा तो ख्याल ये है कि हमने तो सब बेसिक जो उसके एप्लीकेशन में सबसे बड़ा गैप है वो ये है कि ये पर्सनल डेटा के ऊपर होगा। तो अगर वो मेरा सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है तो फिर ये लॉ तो लगेगा ही नहीं। So these are the gaps which I think we all need to address. So that's all from my side. I think thank you so much for being with us, being a panelist and the viewer as well. Thank you so much, sir, for having me and giving me the opportunity. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you, Asif Saab, and we'll be inshallah coming back with the similar sessions in the future as well, ताकि इस concepts को थोड़ा सा हम मजीद आम फहम बनाएं और लोगों को समझाएं कि it is basically affecting all of us। चाहे हम डेटा हमारा मोबाइल फोन से लीक हो, विलिंगली लीक हो, अनविलिंगली लीक हो, चाहे हम अपनी मर्जी से सरेंडर करें या फिर हमें पता भी ना हो और हमारे फोन हमारा डेटा उठा के किसी को भेज रहे हो, या हम जो वेबसाइट्स विजिट करते हैं। सो इट्स बेसिकली अफेक्टिंग ऑल ऑफ अस। We're all generating some data in one form or another, so we should be sensitized about it
और जब हम सेंसिटाइज होंगे, हम अपने राइट्स पे अवेयर होंगे, तो ऑब्वियसली इदारों की कैपेसिटी भी उसी एक जो नेशनल आईक्यू है उसी के हिसाब से वो बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका। जी, मैं तो सोच रहा था कि कुछ दो हाथ कर लेता, आप लोगों ने दोनों ने इतनी ज्यादा खामियां निकाल दी हैं, तो मैं थोड़ा डिफेंड करना चाह रहा था उसको, लेकिन वो बाद में फिर किसी वक्त कर लेंगे। Okay, next session में कर लेते हैं। Thank you so much, Asif साहब। It's very nice having you around, and Jannat, thank you so much. Thank you, audience. So nice of you. Thank you, sir.